جی السلام علیکم دوستوں اور بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد منیر لاہور سے۔ آج ہم بابا سکندر کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں کامران عباس، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ میگزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں ندیم ہی کدھر گیا۔ آج ہم ادھر پہ لائیو ہوئے ہیں استاد بابا سکندر صاحب کی طرف، جیسے کہ ندیم بھائی آؤ نا یار، مختلف جو یہ میڈیا پرسنز ہیں انہوں نے اسٹیٹس بھی لگائے تھے، تو کہ جی آج ہم جائیں گے استاد بابا سکندر صاحب کی طرف، اور اسپیشلی جو آج آنے کا مقصد اور موٹو ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر آج جو کل گفتگو ہوئی تھی جناب استاد ملک مبشر کھوکھر صاحب کی طرف، اس میں پہلے تو شوق چلتا رہا، شوق کے بعد جو انہوں نے ڈسکشن کی اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی، کچھ گلے کیے، کچھ شکوے تھے، اور کچھ جو ہے انہوں نے چیلنج کی بات کی تھی استاد بابا سکندر صاحب کے لیے۔ تو اس سلسلے میں وہاں پر بڑی طویل ڈسکشن چلتی رہی، بڑی اچھی گفتگو ہوتی رہی، اور اس کا جو لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ استاد بابا سکندر صاحب ان سے جو ہے آ کے مقابلہ جات طے کریں۔ وہ ویڈیو ہوئی، اس کے بعد وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی، فوری طور پر ہی وائرل کی گئی۔ اس کے بعد بہت سے دوستوں نے یوٹیوب پر بھی، جو مختلف یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ان میں سے کئی کلپس جو ہیں وہ جو ہے کٹ کر کے اپنی آئی ڈیز پر لگائے، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپس میں بھی پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر وہ ویڈیو بہت زیادہ اور بڑی تیزی سے وائرل کی گئی، جس پر مختلف آرا لوگوں کی آتی رہی، جن میں اسپیشلی جو بابا سکندر صاحب کے فالوورز تھے ان کی طرف سے تھوڑا سا غصہ بھی دکھایا گیا اور جذباتیت کا عنصر بھی سامنے آیا، جبکہ جو استاد ملک مبشر کھوکھر صاحب کے شاگرد حضرات تھے تو ان کی طرف سے بھی بڑا جو ہے اس پہ جذباتیت آئی، اور انہوں نے بھی جو ہے یہ شو کیا کہ وہ بھی اپنے استاد کے ساتھ ہیں۔ اچھا، کچھ اس ویڈیو کے بعد ایک ویڈیو آئی جس میں ایک اور چھت سے لاہور کی جو ہے لاہور قلندر کی چھت سے ادھر سے بھی جو ہے 1 to 1 مقابلوں کی آواز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ استاد ملک منتظر مہدی، ملک قاسم کھوکھر اور استاد ملک نبیل کھوکھر صاحب کی طرف سے بھی 1 to 1 مقابلوں کا کہا گیا ہے۔ تو ہم آج موجود ہیں استاد بابا سکندر صاحب کے پاس، اور ان سے آج ہم ایک تو اس کا جواب بھی مانگیں گے، اور دوسرا ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ جو اتنی زیادہ کبوتر پروری میں سے اٹیچ ہوئے ہیں آج کل، ہر جگہ پر آپ کا چرچا بھی ہے، لوگ آپ کے ساتھ موجود بھی ہیں، فالوورز بھی آپ کے ہیں، ندیم بھائی مستقل جو کیمرہ ادھر ادھر لوگوں پر مار رہے ہیں، دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ جی یہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو کسی وجہ سے یہ لوگ جو اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو ندیم بھائی بھی یہ اسی لیے دکھا رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ لوگ ان سے بھی کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ علم کسی کی میراث نہیں ہے، یہ بات بابا سکندر صاحب نے 12 دفعہ اپنے انٹرویوز میں کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ وہ اپنے علم کو پھیلا رہے ہیں جتنا ان کو اس کے بارے میں معلوم ہے، جتنا ان کو ایکسپیرینس ہے، لیکن یہ ایک ایسی فیلڈ ہے، یہی نہیں ہر فیلڈ میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا سیکھنے کے جو مراحل ہیں وہ ختم نہیں ہوتے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے جس طرح سے استاد بابا سکندر صاحب لوگوں کو علم دے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح بہت سے دوست ہیں جن کو بڑی اچھی چیزیں بھی سیکھنے کو مل رہی ہوں گی، اور جن لوگوں کو اگر نہیں کچھ سمجھ آ رہی تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارا یا استاد بابا سکندر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنے مزاج اور اپنے جو اس کے اندر کا ضمیر ہے اس کے مطابق ہی اس کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا حاصل کر رہا ہے ایک استاد سے۔ جیسے کہ حضرت علی کا ایک قول ہے، مجھے یاد آ گیا ساتھ ہی، کہ انہوں نے کہا کہ جب علم شریف کے پاس جاتا ہے
تو اس کی شرافت بڑھ جاتی ہے، اور جب علم رزیل کے پاس جاتا ہے تو اس کی رزالت بڑھ جاتی ہے. تو اس کی مثال انہوں نے اس طرح سے دی تھی کہ جب آب نیساں برستا ہے تو سمندر کی تہہ سے اوپر جو سطح ہے اس پر صدف آ کے منہ کھولتا ہے تو اس کا قطرہ اس کے بھی منہ میں جاتا ہے، اور سانپ کے بل سے سانپ نکل کے منہ کھولتا ہے تو آب نیسا کا قطرہ اس کے بھی منہ میں جاتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے کہ جب صدف کے منہ میں جاتا ہے تو وہ جوہر بن جاتا ہے، اور جب سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو وہ زہر بن جاتا ہے. تو یہ علم کا جو سلسلہ کار ہے یہ چلتا رہے گا. جو لوگ علم پھیلاتے ہیں وہ صرف اس مقصد سے علم پھیلاتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کوئی بہتری ہو. اب یہ اس شخص کا ظرف ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو دیکھتا ہے. لیکن استاد بابا سکندر کا یہ جو موٹو ہے، یہ جو مقصد ہے، یہ بڑا زبردست ہے. اس کے مطابق وہ جو جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ سیکھ رہے ہیں، بڑا اچھا سیکھ رہے ہیں، بڑا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو دوست سمجھ رہے ہیں کہ استاد بابا سکندر صاحب ایک نان پریکٹیکل استاد، ان کو شاید کبوتر پروری کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے استاد بابا سکندر صاحب سے. سب سے پہلے ہم ان سے ان کا پراپر بیان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم جو ہے اس کے بعد جائیں گے آگے سوالات کی طرف. سب سے پہلے چلتے ہیں استاد بابا سکندر صاحب کی طرف. جی استاد محترم، ہیلو سب دوست بھائیوں کا آپ نزدیک ہو جائیں. انٹرو مار دیا بابا جی. 2 منٹ صرف مجھے انٹرو دے دیں، صرف 2 منٹ. ہاں جی شروع کرو. جی پہلے تو میرے جتنے بھی فالوور ہیں، دیکھنے والے سننے والے، ان سب کا میں شکر گزار ہوں. بہت زیادہ مشکور ہوں کہ وہ میرے پہ اتنا اعتبار کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میں جو کبوتر پروری میں کرنا چاہ رہا تھا نا، الحمدللہ وہ میں نے کر لی ہے، وہ میں نے اچیو کر لی ہے. وہ کسی اچیو کر لی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا. میں کبوتر پروری میں کامیاب ہو گیا کہ لوگ جتنے جو لوگ دیکھنے والے سننے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہر طرف سے ہمیشہ اچھائی اور برائی چلتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. میں کامیاب کس طرح ہو گیا کہ لوگوں کی چاہت ہے میرے ساتھ شو کرنے کی. اور بھی بڑی دنیا میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہے، بڑے انٹرویوز آ رہے ہیں، کسی کے لیے کسی کی کوئی نہیں ہے. یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بابا سکندر استاد ہے، تو اسی لیے اس کے ساتھ شوق لگانے کے لوگ کوشش کر رہے ہیں نا. بات رہ گئی ملک مبشر کھوکھر کی. ٹھیک ہے نا جی. ملک مبشر کھوکھر نے کہا جی بابا سکندر درویش آدمی ہے. وہ ساروں کو ہی پتہ درویش ہی ہے، کیونکہ اتنا سچ بندہ درویش ہی بول سکتا ہے، کوئی جو سا ہے چور نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے جی. بھائی صاحب نے میرے ساتھ بازی کا اعتراف کیا لگانے کے لیے نا، میرے کبوتروں کا کرنے کے لیے. پہلی تو بندہ یہ ان سے بات پوچھے کہ آپ میرے شاگرد ہوئے کیوں تھے، میرے شاگرد کیوں ہوئے تھے؟ باقی تو اتنے کبوتر پرور حضرات ہیں، اتنے استاد ہیں، اور کوئی نہیں ملا تھا. میں کیوں چوز کیا گیا؟ یعنی کہ آپ مجھے استاد سمجھتے تھے تو آپ میرے گھر چل کے آئے نا، کہ میں آپ کے گھر چل کے آیا تھا. آپ ہی میرے گھر آئے تھے نا دبئی. اگر نہیں یاد تو میں آپ کی موویاں نکال لوں گا، سارا کچھ آپ کو یاد کرا دوں گا. ٹھیک ہے نا جی. دوسری بات، میرے کبوتروں کا آپ نے دیکھنا ہے، تو وہ جو ادھر سے پنجریاں بھر بھر کے کبوتروں کی آتی تھیں وہ کیا پھر بیچ دیتے تھے؟ کیونکہ آپ اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہو کہ میں کبوتر بیچتا ہوں. پہلی تو مجھے یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے کبوتر بیچنے کے لیے مووی بنائی ہے کہ چیلنج دینے کے لیے مووی بنائی ہے میرے بھائی صاحب. ٹھیک ہے نا. دیکھیں جی، زبان ہر بندے کے منہ میں ہے. اخلاق سے گری ہوئی حرکت کسی بھی ٹیچر کے لیے اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے نا جی. آپ نے جو لڈو کھایا کبوتر پروری کے حساب سے وہ آپ واپس کرو. ٹھیک ہے نا جی. استاد دوسرا پکڑو. انہوں نے مثال دی بودی بھٹی کی اور باؤ طاہر کی کہ ان کی دونوں کی آپس میں بازی لگی. میرا خیال ہے آپ کو کوئی مشورہ دینے والا بندہ نہیں ہے، آپ کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے. جو پیچھے سے آپ کو لقمے دے رہے ہوتے ہیں نا، ذرا ان سے بیٹھ کے نا کوئی 4-6 باتیں جو ہے لکھ بھی لیا کرو. مجھے پتہ ہے آپ کا
कि आप जज्बात में ऐसी बातें कर जाती हो जो आपसे संभालनी औखी हो जाती हैं, और आपके मीडिया पर्सन से भी वो संभालनी औखी हो जाती हैं। ठीक है ना जी। पहली तो बात ये है कि आपने बाऊ तैर का और बोधी भट्टी का जिक्र किया। बाऊ तैर का बोधी भट्टी शिगिर्द है या बोधी भट्टी बाऊ तैर का शिगिर्द है, कि दोनों चेयरमैन साहब के शिगिर्द हैं। और चेयरमैन साहब की कामरान की मूवी बनी, हम भी देखते हैं, थोड़ा सा मीडिया से हम भी टच हैं। उसमें चेयरमैन साहब ने कहा ये जी हमने एक शुगर लगाया कबूतर परवरों के लिए, एक शुगर लगाया एक एंजॉयमेंट के लिए, हमने एक कबूतर उड़ाए हैं आपस में ना। ठीक है जी। आप मुझे चैलेंज कर रहे हो, वो चैलेंज होके काम नहीं हुआ। और चैलेंज कर किसको रहे हो? चैलेंज कर किसको हो रहे हो? अपने साथ को कर रहे हो जिसका लड्डू आपने खाया हुआ है। चेयरमैन साहब के साथ बाऊ तैर की बाजी नहीं उड़ी, या दूसरे की नहीं उड़ी, बोधी भट्टी की। उस्ताद राजा इफ्तिखार काका मिसाल, वर्ल्ड फेमस उस्ताद। ठीक है जी। लड्डू वापस हुआ नहीं हुआ, पग वापसी हुई कि नहीं हुई? ठीक है जी। उसके बाद उनके मुकाबले भी तय हुए, उड़े भी हैं। पहली तो बात है ना कि मैं ना मानूं, हो खुदा के बंदे क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी बादशाह नहीं हो, तुम्हारे सिर पे ताज नहीं है अकेला कबूतरबाजी का, कि तुम्हारे घर से कबूतरबाजी के कानून नहीं निकलते। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कबूतरबाजी बनाई है वो उसका वही असूल हुसन है। आपने बाजी बूदी कोई नहीं लगानी, आपने बाजी बूदी कोई नहीं लगानी। आपने सिर्फ और सिर्फ वो जो मीडिया पर्सन और जो दिखाया गया ना उसमें सारा कुछ वो सिर्फ कबूतर बेचने का तरीक़ेकार है। तो मैं लाइव में अपने फॉलोअर को कहता हूँ अल्लाह का वास्ता ये देखो हाथ जोड़ के, और भाई ले लो इसे कबूतर, ले लो इसे कबूतर। उन्हें कबूतर बेचने तो इसे कबूतर ले लो। उड़ाने ना उड़ाने का बात सवाल भी पैदा नहीं होता उसका कि वो उड़ाए, क्योंकि उसको पता है मेरा, उसको मेरा बड़ा अच्छे तरीके से पता है। बाकी अगर लाहौर कलंदर वालों की बात करूँ, अच्छे प्लेयर, सुलझे हुए प्लेयर, ठीक है, तमीज़ के दायरे में रह के उन्होंने कहा कि जी आप उधर गए। और अल्लाह के बंदो, आप भी सोशल मीडिया देखती हो, वो कमरान बाज इधर खड़ा हुआ है, वो मैंने मिठू को दावत दी थी। मेरा ख्याल है वो देखते नहीं है कबूतर परवरी को। 2.5 साल पहले मिठू लालियों ने मुझे दावत शौक दी थी कि हमसे कोई छत दे के बाबा जी शौक करें, तो मैं तो उनके घर गया हूँ बाजी लगाने के लिए। ठीक है जी। और दित्ते की छत पे बैठ के लाहौर की जो बात की गई थी वो मेरे सादे मोहतरम ने, साद हाजी गुजर साहब ने कहा था कि आप हमें लाहौर में भी छत दो। मैं तो उधर भी बैठा हुआ, मुझे चेतर की इसने कहा जी चेतर की बच्चों की लगा दो मेट्योर से। मैंने लाइव में कहा, मैं कहा लो जी उतावले मैं इनको मना करता हूँ कि टूर्नामेंट उड़ाओ, बाजी जो होती है हराम है, ना करो। तो ये देख लो उतावले बैठे। ठीक है जी। अगर कोई बंदा किसी के भी वालिद को गाली बकता है, ठीक है जी, तो बेटे में अगर एक पर्सन भी गैरत का खून होता है वो बोलता है या मैं मर जाऊंगा, इसको मार दूंगा। तो भाई अगर मुझे कोई आवाज़ देगा तो मेरे शागिर्दों में भी वो गैरत का मादा है, जुबान उनके मुंह में भी है, वो भी 1000 बातें कर सकती हैं। ठीक है ना जी। तो एक बात तो भाई साहब की समझ नहीं आई, मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ आई कि इनका एडवाइज़र कौन है इनको मशवरे देने वाला। ठीक है जी। मैंने छत बनाई है ब्रीडिंग के लिए, इधर उड़ाने वाली कोई छत 2 साल से कामरान साहब आपको पता है इधर कबूतर है, इधर से किसी ने पल्ला मारा कबूतर को? नहीं। या कोई कबूतर उड़ा है यहाँ से? नदीम भाई आप भी मेरे साथ काफ़ी टाइम से अटैच हो। नहीं बिल्कुल नहीं। ये ब्रीडिंग वाली छत है, ये उड़ाने वाली है? नहीं, जब ये छत बनाई थी उसमें आपने बर्मला कहा था कि सिर्फ ब्रीडिंग से। ठीक है ना जी। आप क्योंकि जो मेरे साथ डेली के बात करने वाले बंदे हैं उनको सारी बातें पता है। ठीक है जी। अच्छा अगर भाई साहब कहते हैं इधर से उड़ाना है, वो तलवार सिल पे मेरे राखी दी है, तो मुश्किल नहीं है, इधर से भी मैं उड़ा लूँगा। पहले आप लड्डू बदली करो, फिर आपको 10 मरले को जगह खरीदो, 10 मरले जगह खरीद के उस पर सेटअप बनाओ नया, और उधर से फिर शुरू हो जाओ। ये क्या बात है? अगर आपने बाजी उड़ानी, आपने बाजी नहीं उड़ानी, मुझे पता है आपकी बाजी आपने नहीं उड़ानी, आपने सिर्फ भागना है। आपने खुद अपनी मूवी में कहा कि मैं लाहौर से बाहर निकल के मैंने शौक किया, ये है ना। ये लो चेतर की आवाज़, यहाँ से चैलेंज है तुम्हें, ओपन बच्चों का तुम्हें चेतर का चैलेंज है, बिस्मिल्लाह करो। और भी जो कोई अगर लाहौर में कोई भाई दोस्त हजरात जिन्होंने मूवियाँ बनाई हैं, मेरा किसी से कोई गिला नहीं, कोई इतराज़ नहीं। ठीक है जी। वो कहता है कोई इंची टेप पकड़ लेता है, कोई ये पकड़ लेता है, वो मेरा भाई हो। ठीक है ना। अगर आपने शौक करना है, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करो,
ये छत बैठी हुई है चेतर की आपसे बच्चे उड़ाने के लिए, तैयार है। और ये भी इलानिया कसमिया टोटल मेरे घर के बच्चे हैं। एक कबूतर देते तेरी छाते पुत्र कोई कबूतर है और बिल्कुल जेडे पहले आन में सारे खत्म करके दोबारा टोटली बाबे दे घर दे कबूतर बनाए, टोटली बाबे को लेके छड़े नहीं। बाबे और आके पहले अगले खत्म करो बाद जना शौक करनी। इथों कोई बच्चा किसी मेरे शागिर्द कोई किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਣੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ बैठे हुए साथ ठीक है जी। फैसलाबाद चक जुमरा ठीक है जी। टोटल ये जोन जिन्होंने बंदों ने चैलेंज किया इनकी जिधर जिधर छत, हम नई पार्टी हैं तो अगर हमारे पास छतें हैं तो इनके पास हमारे से ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो इनके लिए शर्म वाली बात है। इनके लिए शर्म वाली बात है कि इनको फिर कोई सुनता नहीं है। ये खाली छूकियाँ शाकियाँ इश्क में छूकियाँ करने के लिए और टिकटॉक करने के लिए चैलेंज कर दो भाई, लगाओ भी। ओपन कह रहा हूँ पूरे फैसलाबाद से ठीक है जी। चीमा साहब की छत हमारी 5 छतें फैसलाबाद से रेडी हैं उड़ने के लिए। पहले पूरे कसूर से हमारी छत जैगम फैसल वाली ये बैठी है ठीक है कसूर जी। से भी एक चैलेंज आया, शायद वो म्यू है, असलम म्यू है शायद। असलम म्यू साहब ने भी चैलेंज जो आपने चैलेंज वो आपने देखा होगा रात को पोस्ट उन्होंने लगाई है रात को पोस्ट। जो सी पोस्ट बनाई थी कौन है शिकायत किसका? असलम में आपका असलम में जबरी वाला यार चैलेंज किया है ना। असलम में वो अपना नहीं वो तो मेरी तरफ से मेरे शागिर्द ने कहा ना कि कसूर वाली छत से। हाँ जी असलम में उन्होंने जो शागिर्द कसूर में उन्होंने जितने भी अपना उस्ताद मतलब मुबशिर खोपे के जितने भी शागिर्द हैं वो मेरे साथ शो कर सकते हैं प्यार सवाए मेरे एक भाई के देखो वो मेरा बच्चा है, उसने जो बात कर दी है ना काम सारा उस्ताद ने करना, बादी उस्ताद ने लगानी। मैं मुबशिर को क्यों कह रहा हूँ कि उस्ताद ला, तू अपना कोई उस्ताद ला जिसे मैं बाजी तो लगाऊं। अभी तो तेरा मैं उस्ताद तो मैं ही हूँ, जी जी तू उस्ताद तो ला, तो गारंटर तो लेकर आ अपना। असलम से भी अगर कोई बात करेगा तो असलम को वो कहेगा भाई गारंटर ला। कबूतरबाजी का यही असूल है। जी कमरा साहब मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल सही। तू का लफ्ज हटा दे तो अच्छा। यार मेरा तो शागिर्द है ना, मैं तो उसको तू कह सकता हूँ। नहीं थोड़ा सा जी आप कह लेते आप हैं कह जी, लें। जनाब कह लेते बड़ा हैं। अच्छा। सॉरी भाईजान अगर मेरे से तू निकल गया, क्योंकि मैं तो शागिर्दी मैं अपने शागिर्द को तू ही कहता हूँ सही ठीक है ना जी। बिल्कुल सही है। उस्तादी लेवल से ना, क्योंकि अभी तक तो लड्डू उसके बाद मेरा है, लड्डू निकालेगा। का मकसद ये है कि वो अब जो है ये लड्डू जो है वो चेंज हो, उस्तादी वो चेंज हो चेतर का उसको ओपन आवाज है और सारी जिंदगी की उसके साथ कबूतरबाजी है। जब तक मेरी जिंदगी है उसके साथ मेरी कबूतरबाजी है। यानी कि उसका एक्सेप्ट है चैलेंज। एक्सेप्ट है लड्डू चेंज करे, चेतर की बाजी लग गई इधर से। वो कहते हैं कि जी आप अपनी छत बना, मेरी छत है ये, वो वहाँ पर है ना। तो मेरे भाई मेरी बात सुनो, जिसने बात का आपका वहाँ से हो गया ना, मेरे भाई का वहाँ से आवाज दे दी ना, बिल्कुल आवाज है। तो आगे पूरे फैसलाबाद में जहाँ जहाँ उसकी जेठ के लिए छतें तैयार हैं, पूरे फैसलाबाद में हमारी छतें वहाँ से। अमर बाज भी बैठा हुआ है बिल्कुल सही। ठीक है बिल्कुल जी भाई करो गल। जी 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 भाई वालेकुम सलाम जी जी भाई क्या कहना ਅੱਛਾ चाहेंगे ਭਾਈਜਾਨ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ जी जी ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨ जितनी भी उन्होंने छत्ता ने फैसलाबाद जी हमने अपनी पोस्ट भी लगा दी हुई है और नंबर भी दिए हुए हैं। जो वो भी तो भाई सारे पानी चैनल से लगाना लग चाहे जाएगी ना पोस्टें। तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। वो यार कबूतरबाजी उसने बेचारे ने किधर करनी है, उसने कबूतर बेचने हैं। और जी आप दिता साहब दित्ता साहब की तरफ से चेतर का जो है आपकी तरफ से मुकाबलों के लिए आप बच्चों तैयार हो? बच्चों का हाँ बच्चों को ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਣੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰੀ ਰੂਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਲਓ। लो जी, कौन सी ठीक हो गया। ਲਾਹੌਰ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ੀ क्योंकि चीमा साहब की छत से हमारी बाजियां ऑलरेडी 10-15 घरों से मैं हम ये छुकी छाकी नहीं करते। काम मेरे बात सब कह रहे हैं कि जी अगर लाहौर रूल पे आप उड़ेंगे सर, ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਉੜਦੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜੇੜ ਚ ਉੜਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ठीक हो गया। फैसलाबाद जी यानी कि फैसलाबाद कैसे? से लाहौर रूल पे पहला तो जो शर्त है ना, वो जो लड्डू वाली शर्त है, को अपना ग्रंटेड तो लेकर आए। ग्रंटेड पहले है। बाबा जी वैसे जो उस्ताद हो जाता है आपने उसे शागिर्द करके उस्ताद कर दिया, वो खुद मुख्तार वो है। खुद- अब ये आपकी शर्त है कि वो मेरी शर्त नहीं है भाई, खुद मेरा मुख्तियार सवाल- किसका है वो। मेरा 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 सवाल पूरा सुन ले। मेरा सवाल ये है कि आप उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बाजी इस शर्त पे उड़ेगी कि लड्डू चेंज कर। पक्की बात है, पक्की बात है। इधर से कान पकड़ो, कान इधर पकड़ो नदीम भाई।
कबूतरबाजी के रूट से पकड़ा मेरा ही जा रहा है। ऐसी ऐसी अगर मेरा कोई शागिर्द उसके साथ बाजी लगा रहा है तो कान तो मेरा ही पकड़ा जा रहा है, वो किसका है? अगर वो किधर बैठ के अगर बात करेगा तो लड्डू किससे खाया उसने? हाँ वो तो आपका है। ठीक है जी। दूसरी बात, मेरे ताया जी का मैं शागिर्द हूँ ना, मेरे ताया जी को कबूतर नहीं पकड़ना आता, ज्यादा कबूतर लेकर आई जरा, वो कबूतर तो ले गया, मैं पूछता हूँ मेरे ताया को कबूतर पकड़ना आता है कि नहीं आता? ये भी तो मैं उससे जरा उससे पूछ लूँ ना, ये भी तो बाद में उससे कन्फर्म कर लूँ। उस्ताद राना मुबारक। हाँ, फिर मैं उसको बताता हूँ कि जब वो पैदा नहीं हुआ, मैं पैदा नहीं हुआ, मेरे ताया उस दौर से बाजियां उड़ा रहे हैं। मेरे प्यो की शादी में मेरे ताया जी शादी वाले दिन नहीं पहुंचे। ताया जी क्यों नहीं पहुंचे थे यहाँ? अच्छा भावलपुर में। अच्छा, बाजी उड़ रही थी इसलिए शादी पे नहीं है। हाँ जी, शादी में ताया ये कबूतर तो पकड़ के दिखा दें, वो जी बड़ों का हाँ मैं आपको कबूतर पकड़ना नहीं आता। लो जी पकड़ लिया जी कबूतर। कामना था अब तो कोई शक नहीं रहा। आहो, वो कहता कबूतर फड़ना नहीं आता। ओ यार तेन कौन पुठियां मतां देंदा है ओ जी यार, इन्होंने तेरा खाना खराब किया जेड़े तेरे मगर जिन्हें तू समझने तेरे दोस्त ने। चलो इन बातों को इनको छोड़ दे। कौन से सन से आपने कबूतरबाजी शुरू की? मैं तो मेरा ख्याल है बचपन से शौक है। अच्छा, बाजियां कौन से सन से स्टार्ट की आप? बाजियाँ तकरीबन ये 64 65 64 65। 64 65 माशाल्लाह जी। अच्छा, तब से आप जो है सब तो ट्रेंड वाले से मेरी बाजी उड़ी थी 84 में। माशाल्लाह। 7 बाजियाँ जेठ की। माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 मिनट से 3 मिनट से बेचारा जीते हैं, अच्छी कबूतरबाजी से। सही। हार जी तो गेम का हुसन है ना। जी जी 3 बंदों के साथ बाजी थी मेरी, 2 को मैंने जीत लिया, उनसे हार गया। अच्छा बाबा जी, इसके अलावा लाहौर की जो दूसरी छतें हैं, जैसे लाहौर कलंदर वाले हो गए, वो मलिक मुंतजिर और 2 बंदे हो रहे हैं, उनके लिए क्या जवाब? वो यार वो भाई हैं मेरे, कोई शो कोई उन्होंने चाकू तो नहीं मार दिया। ये मैं कबूतरबाजी में आया किस लिए हूँ? मेरा मतलब क्या है? मोहब्बत के लिए। अगर उन्होंने कोई बात ऊंची नीची की भी है ना तो मैं नहीं करूँगा उनसे, क्योंकि मेरा ज़र्फ नहीं है ये। क्योंकि मैं तो अभी इस वक्त बड़ी दुनिया का रोल मॉडल बाबा सिकंदर बना हुआ है, तो बाबा सिकंदर खुद बदतमीजी पे आ गया तो लोगों को क्या मैसेज डिलीवर कर रहा है? मेरी नस्ल में, मेरे ज़र्फ में ये बात नहीं है। अगर मुझे किसी ने, मेरे बड़े ने कोई बात कह दी है ना तो मैं आगे से चुप हो गया हूँ, मैंने उसको जवाब नहीं दिया कभी भी। ये मेरे ज़र्फ में, मुझे कितने ही मीडिया पर्सन पे लोगों ने बताई है बात जी, उसने चैलेंज कर दिया, उसने कर दिया। उन्होंने पूरी मूवी नहीं देखी। शेख अख्तर लुबना साहब, मैं उनको मेरे फेवरेट प्लेयर हैं वो, मैं उनको बहुत अच्छा, क्योंकि उनकी परफॉर्मर है यार, परफॉर्मर है। उन्होंने मूवी नहीं देखी। अच्छा, लाहौर से आपका क्या प्लान है अब आगे कबूतर परवरी का? क्योंकि ज्यादातर इस पर जो उज़र आता है वो यही आता है कि जी लाहौर वाले लाहौर में जरा लाहौर में से भी ज्यादा यार लाहौर वाले मुझे कह रहे हैं ना शौक करने के लिए, मैं तो नहीं किसी के घर में गया शौक करने। सही। जब मैं किसी के घर में जाऊंगा तो लाजम मैं लाहौर में से छत उठा के उनके पास जाऊंगा, ठीक है ना जी। जैगम की मेरी छत है, ठीक है ना, लाहौर में। अभी मेरी उधर से तैयारी नहीं है, जैसे मेरी तैयारी होगी, क्योंकि मैंने अभी बच्चे इधर छोड़े हैं, क्योंकि उधर क्या जैगम उड़ता है, अभी उड़ता है पूरे लाहौर से, लेकिन मैं नहीं उड़ाऊंगा। क्यों? इनको जीत भी गया, इन्होंने मानना नहीं, मैं ना मानू। उन्होंने कहा वो तो जैगम की थे, वो तो पहले भी उड़ता था, उसकी छत थी, वो तो आपका शागिर्द हो गया, वो जी पैसों के लिए हो गया होगा, क्योंकि उधर ही निकालना है ना, उधर ही निकालना है, कबूतरों के लिए, पैसों के लिए, और किसी के लिए उधर बना लेते हैं। तो कोई उधर नहीं, जो दे भी भाई दोस्त हो, आप अगर शोभ करना है, आप शौकीन समझते हो, ठीक है ना। छत पे टोटल कबूतर मेरे हैं, मेरे कबूतरों का जोर है, मेरा जोर देखना है ना, मेरा ही जोर देखना है ना। तो जिसके की छत पे कबूतर भी सारे मेरे हैं तो जोर देख लो। आपने कहा शो करने के लिए, मैं तो नहीं किसी को कहा। तो जी और भी जिन्होंने अगर कोई शौक की किसी को है तमन्ना तो बिस्मिल्लाह, छत है, उड़ते हैं। और अगर किसी ने ग्रुप ला के शौक करना है तो मैं भी ग्रुप ला के शौक करूंगा। किसी ने 1 to 1 करना है कि जी हमारी एक छत है, हम एक छत से मुकाबला करते हैं, तो एक छत से करूंगा। लेकिन इमरान भाई ओपन दिता है, उन्हें लाहौर दी ते शेक विच रखी कोई नहीं। उन्हें कहा किसी जगह तो होवे, लेकिन शक शर्त है कि बाबे दे कबूतर होण। मेरी छत बाबे दे कबूतर हैं, जिवें दा पहले लड्डू चेंज कर लेवन, उस तो बाद जिवें दा उन्हें शौक आ के उही दा मैं उन्हां दे ना कर सकदा। ठीक है, उन्हां दा लड्डू चेंज। दूसरे ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ छत बलोच साहब आ ਬਲੋਚ ਵਾਲੀ ਛੱਤ। अल्लाह देता ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਘਰ ਰਾਓ, ਉਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਲਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੱਢ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਡਨੇ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉੱਡਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੇਤਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਬੂਲ, ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਹੈਗੇ। ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਖੇਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਛੱਤ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਡੇਗੀ। ਬਲੋਚ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। अच्छा, सिर्फ चेतर ही उड़ेंगे जी, अल्लाह देता बलोच साहब, या सर, आगे किसी से जेड़ा भी? भाई अब कामरान आप तो देख कर आए हो, कामरान मेरी बात सुनो, आप तो देख कर आए हो छत पर, क्या आपने वहां पर एक कबूतर भी बड़ा देखा? नहीं, टोटल बच्चे हैं, बिल्कुल। तो यार बच्चे हैं तो फिर चेतर की बच्चों की लगेगी ना। इस साल सिर्फ चेतर, नेक्स्ट नहीं फिर तो सारा कोई सीजन। आगे नहीं का- नहीं 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 हाँ जी। नहीं चेतर बच्चों की हमारे से उड़ गई, और हमने उनके पर खींच के, अगर वो हमारे कबूतर हमारे मुताबिक थोड़े बहुत उड़ गए, बड़ों की भी उड़ गई इसी साल, ये क्या होता है? नहीं तो हो एक- सकता है अल्लाह पाक ने यही साल मौका दिया हो। ऐसा करें ना, फिर वो तो ये बात है ना कि भी तैयारी हुई तो वो तो अगर देखेंगे। पे आ गई ना बात। अगर को छोड़ के अगर आप कॉन्फिडेंटली लगाते हैं, कॉन्फिडेंटली अगले साल से तो हम रेडी हैं ही हैं ना, अगले साल से अगले साल रेडी हैं ही हैं। अगले साल से मुराद इस साल बच्चों की अगर किसी को शौक है, अभी मेरे भाई देखो, चेतर बच्चों की बात है, बिस्मिल्लाह कबूतर टोटल मेरे, ठीक है जी, मेरे घर के कबूतर, मेरे नाम से बाजी लगानी है, वो अपने उस्ताद जी के साथ मेरे नाम का पर्चा लिखें। अगर उन्होंने खुद लिखना है तो मेरे शिगिर्दों के नाम से पर्चा लिखें, ठीक हो गया। बेशक वो उस्ताद हो। में आपका जो शिगिर्द है असलम में हो, हाँ, कोर्ट उसकी वाला छत से मैं किसी से अभी ताल्लुक है। लगाऊंगा। उसने अगर मुझे साथ किसी और जेठ की आवाज दी है। मेरी वो तो जान उसने अपने जाती तौर पे जाती तौर पे की है ना, बच्चा है जाती तौर पे अपनी तौर पे की हमारा है। मकसद इससे हमारी जो बाबा छत है ना सिकंदर जी, वो जैगम वाली छत जो थी है ना, उनके लिए हाजिर है, ठीक हो गया, हम लगाएंगे उनसे, सही। ठीक है ना जी। अभी हम हमारा पूरा फोकस, जो हमारी पूरी कबूतरबाजी इस वक्त चल रही है, वो टोटल चल रही है अल्लाह दिता की छत के लिए। चलो माशाल्लाह जी, अब इस वक्त 1000 से ज्यादा बंदे तो मेरे पास हैं जो लाइव हैं, और 250 के करीब मेरे 200-250 इनके पास भी 250 मेरे हैं, पास। और सबके पास अच्छे इस वक्त, मतलब तमाम पाकिस्तान इस वक्त मेरा ख्याल भाईजान देख जितने रहा है। कबूतर परवर भाई हैं ना, उन सबको मैं जो है ना जी, बहुत दिल से उनका मशकूर हूँ कि वो मेरे से प्यार करते हैं, और जितने मेरे फैन फॉलोवर हैं, ठीक है ना जी, उनके लिए ये पैगाम है कि यार खुदारा इस कबूतरबाजी को ना जंग ना बनाओ। मैंने भी देखा, मुझे भी दिल से बड़ी तकलीफ हुई है, बेशक वो मुबशर के लिए गलत बात बोल रही है, नहीं बोलो यार, नहीं बोलो। इस शौक को जो है ना जी, एक अच्छे अंदाज में। हाँ जी जैगम साहब, भाई कामरान गल करना चाह रहे थे कि उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब ने चैलेंज करते हुए ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है। ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਉਸਤਾਦ ਰਨ ਉਸਤਾਦ ਮਲਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਰ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ। ठीक है। 2024 ਜੇਠ 'ਚ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਦ ਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦੀ ਚ ਕੀਤੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 2024 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਤੈਅ ਕਰ। जी मोहम्मद जी, वो अभी ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है, जो मुझे चीज़ अच्छी लगी, पॉजिटिव पॉइंट ये था कि जैगम भाई ने बात ज़रूर की है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरा उस्ताद इजाज़त है, अपनी तरफ से उन्होंने डायरेक्ट फायर नहीं किया यार ये वो एक अच्छी बात है, अच्छी मिसाल है। यार जी कल रात से ही इतनी पोस्टें लग जानी थी, ठीक है ना जी, मैंने सारों को रोका, मैंने कहा यार अगर वो गलती कर रहा है ना तो हमें गलती नहीं करनी चाहिए। आज के दिन तक वो मेरा शागिर्द है, कि मैं 1000 बंदों को कह सकता हूँ कि भाई मैंने उसको शागिर्द किया हुआ, सही, ठीक है, इसमें वो मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि जब एक रस्म फिर क्यों बनी हुई है लड्डू की, हाँ, या फिर ख़त्म यार ख़त्म करो फिर इसको ख़त्म करो फिर। ये जो बड़े उस्ताद हमारे बैठे हुए हैं, उनसे मोतबराना गुजारिश है, अगर ये उनकी एक उन्होंने एक रीत बनाई है कबूतरबाजी की, ये तो बंदा उसको सीधा चैलेंज दे रहा है, बिल्कुल सही है, ये तो उसके अगेंस्ट जा रहा है इस बात के। या तो ये वो लड्डू छोड़े जो हमारा असूल है कबूतरबाजी का, दूसरे से लड्डू खाए, लड्डू छोड़े बाजी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जी वो
अगर नदीम भाई एक मिनट में छोड़ बात दे। कर रहा हूँ, लड्डू नहीं छुटता गेम के मुताबिक जो गेम है ना उसका समझे उस्तादी शिगिर्दी के बगैर तो बाजी है ही नहीं मेरी जान। आप मेरी लड्डू जान, का अगर लड्डू तो बाजी तब्दील होगा जब वो किसी और का किसी लेगा, दफा ये आपने- बात थी। हाँ, तो अगर- वही चीज़ पे आया और है। जिनको वो अपना आइडियल मानते हैं, अगर जिनको- वो आइडियल मानते एक हैं, मिनट पहले यार, शरीर थोड़ी जरा बहस छोड़ दे। अगर वो अभी भी बाजिद रहते हैं कि भाईजान बाजी लगाएं, आप उज़र न दें, वो उसने फिर पब्लिसिटी करने के लिए काम किया जो नजर आ रहा है सारों को, दुनिया पागल नहीं है। नहीं तो अगर वो मिसाल दे रहे हैं उनकी, जिस बाजी की वो मिसाल दे रहे हैं, तो पीर भाई तोड़ सकते हैं फिर भी। कैसे? जैसे उन्होंने मिसाल दी थी बाऊ की और बोधी भट्टी साहब की। भाईजान हमें कबूल नहीं है ना, ठीक है, आप कहते हैं हमें कि चैलेंज पीर कर भाई रहे भी हो। आपस में लड़े। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो पार्टी चेंज करें। नहीं नहीं, वो कान तो मेरे दोनों पकड़े जा रहे हैं ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उस्ताद अगर मलिक मुबश्शिर अगर दिता हारा तब भी मैं हारा, ठीक है, अगर मुबश्शिर हारा तब भी मैं हारा, सही है। ठीक है। और फिर ग्रांटेड भी तो चाहिए ना, ग्रांटेड उस्ताद लाएगा तो ग्रांटेड मिलेगा ना। जो इतनी इतनी पार्टियां बनी हुई है, जो सरबराह पार्टी होता है, सारा मुद्दा उसके ऊपर नजला उसके ऊपर क्यों गिरता है? अगर उसका कोई उसको रोल मॉडल उसको रखा ही नहीं किसी चीज में, ठीक है जी, तो वो तो फारिग हो गया बंदा। इतनी इतनी जो पार्टी है उसके सरबराह हेड तो फिर तो कोई भी नहीं, जिसका दिल उठेगा अपना कानून चला देगा। इस 1-on-1 मुकाबले के लिए सबसे पहली शर्त जो आपकी वो मैं नहीं शर्त रख रहा यार, कबूतर परवरी की ठीक बात है, मैंने कहा कि लाजिम है, जो उसूल है वो लाजिम। आप कह रहे हैं कि जो उसूल है उसके मुताबिक चले तो बाजी लगती है। बिल्कुल लगती है, बिल्कुल इसकी लगती है। मिसाल ये है, सिकंदर बाबा ने हाजी मैं अस्कर को छोड़ के उनकी वो पग वापस ताया से करके ली वापस कर आप भी ली। मैं खुद उस्ताद था, मैं शागिर्द होके हाजी साहब का जी मैं उस्ताद हूँ। क्योंकि हमने दाव में आना था, पूरी हमने दाव के अंदर एक हुस्न है कबूतरबाजी नहीं होगा ऐसे ही है। ठीक है जी। कानूनी होकर फिर आगे हो। बिल्कुल सही, आप पहले भी उस्ताद। अब मेरी कोई भी बात है, कोई भी मेरी गारंटी चाहिए होगी तो मेरी जो सी है अपना इखलाक खान पार्टी, तो वो मेरी जिम्मेदार है ना, बिल्कुल मेरी पूरी जिम्मेदार मेरी पार्टी है। ऐसे ही है। जहाँ जहाँ मेरी पार्टी बैठी हुई है, अगर मैं किधर भी कोई हरकत करूंगा तो मेरी पार्टी को पूरी को देनदार है, जिम्मेदारी आएगी उन पर। इसका जिम्मेदारी कोई नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? जिम्मेदार तो लाए अपना कोई। यार देखो ये आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से मैं जिम्मेदार नहीं बन सकता। कैसे बनूं? एक तरफ तो वो मान ही नहीं रहा, वो बोलता है 3600 तो उस्ताद वो बना लेता है, कभी किसी को मानता है, कभी किसी को मानता है, कभी किसी को मानता है। अच्छा, एक और इसने बात उधर की, राना मुन्ना साहब अली ना, ठीक है जी, छुदनी छोड़नी है ना छोड़ दो, छुदनी है छोड़ दो। क्या चीज? कि वो एक मूवी वायरल हुई थी, इसने कहा था जी कि उसमें मैं अपना आइडियल उड़ाने का अपना राना मुन्ना को मानता हूँ ना, अच्छा जी, ठीक है जी, कल भी कहा। कल भी का, ठीक है ना जी। और उसमें वो जैन को जोन सा है अपना गलत जोन सा है वो मैसेज भेजा गया कि जी वो उस्ताद उन्होंने डिलीट करवा दी। बिल्कुल मैंने करवाई, मैंने करवाई, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ मैंने करवाई। क्यों? कि यार मेरी जो फैन फॉलोइंग है, मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने कोई 100 200 300 400 बंदों ने मुझे मूवी भेज दी कि भाई शागिर्द आपका है, सारा कुछ आप कर धर रही हो, ठीक है, बकौल आपकी, ठीक है ना। वो तो ये बात मानता ही नहीं है, वो तस्लीम ही नहीं करता, क्यों मैं ना मानूं। अच्छा, वो जिस बात पे हंस रहे थे वो मुझे नहीं इस बात पे। हाँ जी, वो ये बात थी। शाम को मैंने उनको कहा भाईजान मेरे इतने फैन फॉलोइंग है, इतने दोस्त हैं मेरे, ये देखो मुझे दुनिया क्लिप काट काट के भेज रही है, ये आपने क्या तमाशा की है? ओहो साजी गलती होगी, जिस तरह अभी गलतियां की हैं, अभी मूवी बनाने में जो गलतियां की हैं, ओहो साजी गलती होगी, गलती होगी। और जैन 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 डिलीट मार सादा फोन आया, वो इसलिए हुआ था। तो मेरे अच्छा, को एक और उज़र था हाँ जी, कि जी जब मैंने उन बात की, मैं देखें जी हमारी जो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीमा साहब हो गए, बलोच साहब हो गए, ड्रैगन हो गया, इसके ये प्रोफेशनल लाइफ इनकी एक अलग से लाइफ है। आमिर भाई हैं, इनकी भी एक अलग लाइफ है। तो ऑब्वियसली 4 अकाउंट तो नहीं हर बंदा बनाता फेसबुक पे, तो फेसबुक पे, ट्विटर पे, किसी पे भी वो एक ही अकाउंट होता है। तो उसमें आपके जो प्रोफेशनली जो लोग हैं वो भी आपके साथ अटैच होते हैं, या आपके रिश्तेदार खानदान वाले भी, दोस्त अहबाब कोई भी होता है, अटैच ज़रूर होता है। कम से कम फ्रेंड लिस्ट में ना हो, फॉलो अप तो कर रहे होते हैं ना। तो मैंने उधर कहा था कि जी हमारी जो ज़बान है, जो हमारे कबूतर परवरों का जो शौक़ है, इसमें खूबसूरती और शाइस्तगी रहनी चाहिए। तो उस पर उन्होंने ये उज़र दिया था कि जी बाबा जी जो बात करते हैं, सब उस्ताद ऐसे हैं, सब बिकाऊ हैं, सब यूं करते हैं, सब यूं करते हैं। जो बेचते हैं ना, वो जो बेचते हैं, वो जो बिकाऊ हैं, और उनको मैं ये बात कहता हूँ कि यार खुदा का वास्ता है,
अगर आप गलत करके किसी को चीज़ देते हो तो उससे आपको नहीं, वो आपकी माँ बहन की आपको गंदियाँ गालियाँ बकरे होते हैं पीछे से। और मैं इसी को चीज़ को करने आया हूँ कि यार अगर हड्डी जोड़ पर का पता चल जाएगा, बंदा खुद जाके कॉन्फिडेंस से कबूतर खरीद ले, क्यों उसमें उधर खत्म हो जाता है। स्पेसिफिकली आप किसी को नहीं कह रहे, आप एक माशरे की बुराई के बारे में जिक्र कर रहे हैं। हाँ ठीक है, और मेरा क्या लेना देना यार, और मेरा लेना देना क्या है। मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि यार शऊर आ जाए बंदों में, हड्डी जोड़ पर। मैंने आज तक किसी भी बंदे से कबूतर लेकर आया हूँ ना, अच्छा निकला है, गंदा निकला है, बुत नहीं देता, माती अंडे नहीं देती, मैंने नहीं उसको कहा, क्योंकि भाई मैंने शौक से लाया हूँ। वो मेरे घर तो नहीं आ गया कोई बेचने वाला, कोई बेचने वाला मेरे घर तो नहीं आ गया, मैं खुद गया उसके घर, मैंने खुद पसंद करके लिया। आपसे भी हजारों दुनिया पूछती हो कि किसके अच्छे हैं, आप बोलते हो यार मैंने तो फलाने के बड़े अच्छे लगे। अब उसमें आपका भी दोष आ जाएगा कि आपने कहा फलाने के अच्छे। सही हो गया ना। जो लोग मीडिया पर्सन को गलत कहते हैं ना, मैंने कभी कहा हो, आप लोगों ने सुना हो मैंने किसी मीडिया पर्सन को बुरा कहा, तो यार आप लोगों की एक छोटी सी एक रोजी है, जो आपके सामने जो बंदा बैठा है उसने जो बात आपसे कहनी है आपने वही करनी है ना, उससे ज्यादा काम तो नहीं कर सकते। उसमें भी आप बाकियों के साथ तो मेरा इतना वो नहीं है, लेकिन कमरान के साथ तो ज्यादा है ना। ओ पीरा ये तूने क्या कर दिया, ओ पीरा ये तूने क्या कर दिया। उसने कहा यार वो बंदा मुझे अब ऐसे कह रहा था, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है अच्छा दिखाने की, ठीक है ना। उसने कहा मेरे सारे दिखाने ने, मैं बेचने ने, ठीक है जी। तो मेरी कोशिश ये है कि यही मीडिया की वसात से ही बाबा सिकंदर आया ना आप लोगों के पास, या और भी जो आप लोगों के इतना शौक आया वो कहाँ से आ गया आप लोगों को। बंदा इनसे पूछे जो कुंडे साफ कराने वाली बात थी, तो कुंडे साफ करते रहो सारी जिंदगी, तो शऊर भी तो मीडिया लाया ना। कबूतर परवरी आई मीडिया से, फड़ के मीडिया को गाला कटन शुरू कर दी। अच्छा उस्ताद जी, नेक्स्ट जो है लाहौर से जब मलक मुबशर खोखर साहब जब ये उस्तादी चेंज कर लेते हैं, उसके बाद अगर वो कहते हैं जी मैं लाहौर से शो करना चाहता हूँ, तो क्या 2024 से या 2023 से 24 से 25 से हम आगे उनके साथ शो करेंगे? भाई पहले तो हम देखेंगे ना वो गारंटर कौन सा लाते हैं अपना, ठीक उसके मुताबिक देखें, उसके मुताबिक हम देखेंगे, लाया अमल देखेंगे। आगे तो वो गन्ने वाले चुक्के ले आए। एक जगह मैं कबूतर देखने गया, तो मैं कमरे में गया नमाज पढ़ने, तो वो जो था ना अपना गन्नों के ऊपर ना वो फटाफट जो थे ना कपड़े डाल रहे थे। मैं क्या दिखा दे देती ने कैसे बुरा नहीं कहना। उन्होंने गन्ना ले लैन, अब जेड़ा क्या कोई बदतमीज उस्ताद फड़ के ले आन, ठीक है, गालम गलोच करने वाले, तो शौक तो नहीं होएगा। शौक करने वाले होन जिन्हां नूं चार बंदे जानते होन, ठीक है ना जी, उन्हां दे नाल। मुबशर साहब ने गल की थी अपना इंटरव्यू दे विच ही कि जी वो तो मैं डॉक्टर साहब दा लड्डू चेंज करना सी, मैं ही लभ्या सी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। डॉक्टर साहब डॉक्टर नहीं बोला, कहते जी मैं बाऊ ताहिर का शागिर्द हूँ, उन्होंने मुझे जो उंगली पकड़ के चलना जो है ना सिखाया। वो यार तो 5-6 चेंज उसके बाद ग्रुप पे उन्होंने कहा जी ग्रुप मैंने चेंज करना था, इसलिए मैं सिर्फ बाबा सिकंदर साहब का शागिर्द हुआ उसके बाद। अच्छा तो मेरे अच्छा बाऊ ताहिर साहब के हुए, बाऊ ताहिर साहब के हुए, बागली मुझे उधर पकड़ पकड़ के बैठाई रखता है हर टाइम। नाम मेंशन कर रहा हूँ, बागली का नाम मेंशन कर रहा हूँ, कहता है साडा भी एक दिन का शागिर्द होया है, एक दिन का। बागली चौधरी साहब से भी शागिर्दी ली है। फिर डॉक्टर साहब का पूरी दुनिया ने ढोल टमके नहीं देखे, डॉक्टर साहब का शागिर्द डॉक्टर के बाद मेरा हुआ है, डॉक्टर साहब के बाद मेरा हुआ है, ठीक है। वो कह रहे मैंने तो सिर्फ ग्रुप बनाना था। अच्छा मेरे घर किसके साथ आए थे ये तो बताओ ना, उनको लाया कौन था? डॉक्टर फरीद साहब लाए थे। अच्छा हाँ जी, निकाल लूँ मूवी, फिर निकाल के ले आऊंगा। अगर इनकी शॉर्ट मेमोरी है ना तो मैं इनकी मूवी निकाल के ले आऊंगा। चलो जी ये देख लो। अच्छा बाबा जी, और कबूतर भी जो उड़ाने का वो सिस्टम था ना, तुराब साहब ने उस्तादी शागिर्दी करवाई थी, उस्तादी शागिर्दी भी तुराब साहब ने करवाई थी, ठीक है ना जी। अगर बाबू साहब को आइडियल मानते हैं, बाबू साहब को सारा मानते हैं, तो बाबू साहब से लड्डू ले लें, अगर वो दे दें तो। अच्छा बाबा जी, जब मलक मुबशर की उस्तादी शागिर्दी आपके साथ थी, आपके पास किसका लड्डू था? मेरे पास उस वक्त किसी का लड्डू नहीं था। नारा सगर का नहीं था? नहीं पंचायत मेरी के साथ थे? नहीं नहीं उन्होंने पहले इनको
पहले मुझे शागिर्द करवाया गया है शागिर्द हो के उस्ताद हुए मेहर साहब का, फिर मुझे उस्तादी लेके दी है, फिर मुबशर साहब ने लड्डू खाया है। नहीं, जब आपने उस्तादी बदल ली, अब वो लड्डू तो खत्म हो गया, कौन सा? पिछला मेहर असगर वाला, दोबारा आपने उसे शागिर्द नहीं किया। एक उस्ताद जब उस्तादी बदलता है तो क्या उसके शागिर्दों को दोबारा शागिर्दी में आना पड़ता है या नहीं, ये बताइए। यार ये आप खुद ही सवाल कर लो और खुद ही इसका जवाब दे लो, ठीक है ना, क्योंकि आप भी तो उस्ताद हो। नहीं, मैं आप तो ही शागिर्द हूँ। चलो जी, शागिर्द हो, आपके जो उस्ताद है ना, उस्तादी पीरी वाले हो ना, और एक ग्रुप वाइज आप चल रहे हो, ठीक है ना जी। मेरे भाई बात ये है सिंपल, मेहर साहब ने मुझे कहा चेंजिंग करो, मैं नहीं मानता, नहीं मैंने बाबा चेंज जी, किया। ये असूल है वैसे कि अगर एक उस्ताद के पास शागिर्द 2 4 वो यार 5 ग्रांटेड कौन है, उसका ग्रांटेड कौन है, ग्रांटेड कौन है? लड्डू को छोड़ दे ग्रांटर ले ले, कैसे ग्रांटेड ले ले? कोई ग्रांटर बता दे लाहौर में। और ये मेरे बंदा भाई कुछ ले। देखो, जब वो आपको आवाज देगा ना तो आप उससे ये बातें कर लेना, आप उससे लगा लेना, चल ठीक। आप उससे अपने दौर पे कर लेना, नहीं, मेरा एक ठीक है ना? सवाल नहीं बनता नहीं, था। जज नहीं बनो ना, आप जज नहीं बनो, मैं जज नहीं बन नहीं जज बन रहे हो ना, आप जज बन रहे हो, आपको जज बनना नहीं चाहिए। जो कबूतर परवरी का असूल है, जो कबूतर परवरी का रूल असूल है, नदीम भाई, उससे आप शायद वाकफ नहीं हो। चले फिर ये बता दें कि एक उस्ताद उस्तादी चेंज करता है, चेंज करने के साथ दोबारा वो लड्डू लेता है तो उसके शागिर्दों का क्या स्टेटस होगा? कामना था, बताओ जरा। सर उसमें इस तरह से है कि अगर एक उस्ताद उस्तादी छोड़कर वापस इस्तीफा दे देता मुकम्मल तौर हाँ पे, जी, तो उसके बाद जाता है वो दूसरी दफ में, ठीक है, तो उसके जो शागिर्द हैं उसूलन तो ये था कि जी उनके उनको शागिर्द किया शागिर्द जाए। किया जाए। लेकिन अगर आपके मुखालफिन, या आपने अक्सर और बेशतर हमारे लाहौर के जो इकट्ठ हुए हैं उनमें देखा होगा कि जो आपका मुखालिफ है, अगर वो आपको कह देते हैं कि जी हम उनको अभी भी शागिर्द मानते हैं, तो आपको लड्डू खिलाने की जरूरत है। लड्डू एक आपका पर्सनल मैटर हो जाता है। सर पिछली उस्तादी शागिर्दी खत्म हो जाती है। अगर खत्म होगी तो फिर तो उनकी उस्तादी भी खत्म होगी, बिल्कुल और अगर खत्म वहाँ होगी तो उनका तो बिल्कुल उसकी उस्तादी तो फिर मेहर असगर वाले लड्डू की खत्म हो गई। अगर वो इनकी उस्तादी खत्म हुई है तो फिर तो बात है कि उनकी भी टूट जाएगी ना, फिर तो उनका भी ग्रुप खत्म हो गया। हाँ जी, तो आप याद रखिए कि आप फिर मलक मुबशर खोकर की भी उस्तादी जाती रहती है। अगर वो फिर वो उनको खुद मुख्तार जब कर दिया, एक दफा हमारे यहाँ कहा जाता है कि नदीम साहब ये गलत उस्तादी सुनने मेरी बात। नहीं उस्ताद जी, मेरा एक सवाल से गलत सवाल ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਹਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, उस्तादी में ਇਹ बहाना होना है इस तो सवाल की। नहीं मेरी नहीं बात माना नहीं हो सकता ना। मेरी बात सुन लें, जब मुखालिफ हजरात सामने से बिठाने का मकसद ही ये होता है कि उस्तादी दस्तार मुखालिफ बांधे। जी बिल्कुल, ठीक है, जब उसने दस्तार बांध दी तो वो उस्ताद हो गया अगला। ठीक है, हम लोगों का भी इस तरह ही हुआ ना। अगर पहले आपकी उस्तादी खत्म हो रही है, नहीं हो रही, तो फिर आगे फिर वो तो उस्ताद हो गया ऑलरेडी, उसको मुखालफों ने मान लिया। मुखालफों ने ये कह देते हैं कि जी आपके बाकी शागिर्द सारे बहाल है। सर जी जब दफ चेंज हुई, उस्ताद चेंज हुआ, पिछले लड्डू की अहमियत खत्म हो गई। शागिर्द हजरात, शागिर्द हजरात, असातिज़ा की लेकिन जो शागिर्द होते हैं ना वो उस्तादों को चैलेंज भी नहीं करते। नहीं असातिज़ा की पहली नहीं, दफा शागिर्द हुआ है। हजरात की बात। जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल पहली बिल्कुल दफा ठीक हुआ है है। एक शागिर्द उस्ताद को चैलेंज कर रहा है। बाबा जी ये सवाल मैंने इसलिए किया था इसका कि ये जवाब उनकी ये तरह है से कि वो गुजरना है। चेंज करे और बाजी लगाए। जी ठीक होगा बाबा। चले बाबा जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जो है ना असातिज़ा की नहीं होती। उन्होंने वीडियो में ये भी कहा था कि जी वो 4 साल पहले बाबा जी को कोई नहीं जानता, जब वो मेरे साथ जुड़े उसके बाद बाबा जी जो उनसे हैं वो जी किसी जगह पे पहुंचे हैं। अच्छा चलो, मूवी से जो सा अपना दलाइल दूं। जी जी, आप नहीं, आप अपने मौका पे पेश करें ना उस अपनी चीज़ का। सफाई पेश करो। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना जी। हाँ जब ये मेरे साथ गया था हाँ, हाँ, पीर फुआद की छत पे, जिधर इंटरव्यू अपना कामिल ने किया। कामरान ने किया, ठीक है। तो उस मूवी के अंदर वो उस वक्त पाकिस्तान की चैंपियन छत थी, ऐसा ही है जी। ऐसा ही है। और उसके अंदर पीर फुआद साहब ने खड़े होकर कहा था, बाबा जी मेरे बड़े भाई हैं, छत इनकी है। बिल्कुल, ये उसके अल्फाज हैं मुँह के। और मैंने वहाँ से उस छत से मैंने किधर जाना था, किधर जाना था जी? मियाँ वाली किसके पास? खान साहब पिपला जाना था मुझे, अमीर मुख्तियार खान साहब के साथ। और हम उधर से निकल के गए थे काशिफ बिलाल की छत पर। वो भी सारा कुछ इसने मुझे मिलवाया होगा सारों से, ठीक है ना जी। और जो उनके काट में तस्वीर लगी हुई है मेरी, या राजा काका की जो उस्तादी शिगिर्दी हुई है, जो उस काट में मेरी तस्वीर लगी हुई है, उससे पहले जो मीडिया पूरी मेरे पास घूमती रहती थी, मैं तो सामने आता ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल सामने नहीं था आता। और क्यों नहीं आता था? इसी वजह से नहीं आता, इसी वजह से नहीं आता था कि यार मैं अपना बिजनेस करूं, या जो सा ये लोगों के साथ जंगे लड़ूं। रात को लड़ के मैं तो सामने ले आया। ठीक है ना। वो तो कामरान ने जो सा सारी जो सी रात ही नहीं हमें बताते लोग,
नहीं हमें बताते। कैमरा की तरफ घुमाओ, कामना से पूछो। साडे कोल भी पूछना चाहिए ना, पूछना की ये भी तो दस नहीं जी, नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम रात को बैठे रहे पीर फवाद अजीम की छत पे, इब्तिदा में हमारी तलब कलामी हुई है। ये कब की बात है ये भी बताएं। बहुत पुरानी बात है, 4 साल पहले की बात है। 2018 दिसंबर, 4 साल पहले 2018 दिसंबर। तो उस वक्त में हमारी बात हुई थी बाबा सिकंदर साहब से। रात को वहाँ मुलाकात हुई थी, मुबशर भाई भी थे, हम सब भी थे, शहबाज था। तो इकट्ठे बैठ के बात हुई तो इन्होंने कहा जी कबूतरों के पॉइंट के बारे में लोगों को पता ही नहीं। मैं कहा इतना अगर आपको पता तो आप बताते क्यों नहीं? फिर बताएं ना, हम भी तो देखें कि आपको कितना पता है। तो वो मैं गलती कर बैठा हूँ, वो आज तक उस दिन बाबा कैमरे दे ये भी कैमरा थी शिदा। अच्छा, उसमें लड़ाई क्या थी? उसमें दोस्तों भाइयों लड़ाई क्या थी कि यार मुंतज़िर भाई हमारे जी करिए आप, हमारे जो अपना कबूतर परवरी है ना यार, हमारे जो से ना सफ़ीर आप लोग जो यूरोप में पूरे बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जो पाकिस्तान में है, वो तो फिलहाल तो मेरे को लोगों के साथ जो उनसे अपना लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। तो आप लोग हमारे सफ़ीर हो, आप लोगों ने शौक करवाना है। हम जो बाहर बैठ के शौक कर रहे हैं, आप झूठ बचाओ सच बताओ, हमारे लिए तो वही सच है। तो मेरी कामना से लड़ाई ये थी कि यार प्रॉपर कबूतर को दिखाओ, प्रॉपर बताओ, ताकि लोगों का भला हो जाए, फायदा हो जाए, ठीक है ना जी। क्या कहा था कि भाई 150 लाइन में लगा होता है कबूतर, तो कैसे प्रॉपर दिखा ले? 2 4 5 तो बंदा प्रॉपर दिखाता है। वो कहता है जी हमारी मजबूरी है, जिसके घर जाते हैं भाई हमारी रोजी रोटी है, हम अपने क्लाइंट को कैसे नाराज कर लें? सही बात है। मैं कहा अच्छा, और इन्होंने ही पंगा डाला था कि जी आप बना लिया करो। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, शुरू हुआ काम। फिर मैं कहा आप शुरू हुआ, हम बना लेंगे, हम बताएंगे फिर जो हमें पता होगा। उससे पहले कोई भी नहीं बंदा बता रहा था। बहरहाल इस वक्त मैं एक बात, और मैं इस बात में कामयाब हो गया हूँ कि बहुत सारे उस्ताद कराम माशाल्लाह बड़ी अच्छी परखें बता रहे, जो हम भी सीख रहे हैं। किसी ने कोई बेड़ा तो उठाना था ना, किसी ने बेड़ा तो उठाना था, बात का हम भी सीख रहे हैं। आप लोगों की बसात से सीख रहे हैं, आप लोग जाते हो, लोगों का शो करवाते हो, उससे हमारा भी फायदा। पहला से ही चुके सी नहीं ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੰਮ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ 10 ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਾਬ ਹੈ ਲੋਕ, ਤਰਾਬ ਹੈ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਲਾਲਾ ਮਾਜਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੁਖ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਣ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਰੁਖ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ੈਨ ਨੇ ਰੁਖ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖੀ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਫ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਮਲਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਾਮ ਜਿਸ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਚੇਤਰ 2023 ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੌਕ, ਚੇਤਰ, ਵਿਸਾਖ, ਜੇਠ, ਹਾੜ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰ 24 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਰ ਦਾ ਇਸੇ ਦਫਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠ ਦਿੱਤਾ। मैंने छत पे बिठा दी है, ਦਿੱਤਾ छत पे ही अल्लाह की रहमत से। और मैंने अचीवमेंट किया की है कबूतरबाजी में। और ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। इधर आ भाई, इधर आ दिखाइए ना कि बाबे अचीवमेंट की है कबूतरबाजी दी, ठीक है ना। ये मेरे लिए फखर दी गल है। इधर आ जा। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਇਨ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा अब इसने ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ। ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਭਾਈ ਅਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਇਨਕਮ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਅਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰਹੇ अल्लाह दिता भाई बह के शौक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि भाई उस्ताद के लिए ये उन्होंने एक मिसाल बताई है कि उस्ताद एक ऐसी मैंने क्या बोला था, उस्ताद देने का नाम है, लेने का नहीं। ये मकसद ठीक है ना कामरान भाई बिल्कुल ठीक। और खाली दिते के लिए नहीं है, मेरे जितने शागिर्द हैं उन सारों के लिए हैं। ਸਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਕਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹਾਜੀ अच्छा वो तो मेरे उस्ताद ने, मेरे उस्ताद ने मेरे नाल ही कराना है ना। ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2026 ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ। ठीक हो। वो तो मेरे उस्तादों ने कल भी इंटरव्यू कर दिया हुआ मेरे अपना जी जी उससे आईडी से ना, कि जिसने भी बाबे को बात की है तो पहले बाबा शागिर्द हमारा है, हमारे साथ, यही तो मैं उसे गारंटी मांग रहा हूँ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਰੋਲਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾ ਛੱਡੋ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦਿਓ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਹਰੀ ਦੇ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਛੱਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਹਰੀ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਉਡਾਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਗੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦਿਓ। ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ये किसी ने नहीं उन्होंने कहा है अपने खुडे से अपने घर से ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਖੁੱਡੇ अपने घर से शागिर्दों की छत से ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਖੁੱਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖੁੱਡੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾ ਦਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦਿਓ। चले बहरहाल मेरा ख्याल है कि यहीं से इसको वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छा इस वक्त ये बातचीत हुई और मेरा ख्याल है आपका पैगाम भी पहुंच गया। अच्छा अब दीपक का भाई कहता क्या है? कहता तेरी जानी माली पैसों की, ठीक है, हर तरफ से सपोर्ट करूंगा, कहना भाई ठीक हो गया। और इसका सबसे ज्यादा सख्त खिलाफ कौन था? दस भाई। कबूतरबाजी इसके कबूतरबाजी खिलाफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਾਏ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਐ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ 76 ਵਾਸਤੇ 2023 ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਬਰਾबर आपकी छत इस वक्त चेतर के लिए नॉमिनेट है जी अल्लाह दिते की, और अगर वो उनके मुताबिक इस साल सिर्फ 2023 और अगले साल 2024 से तमाम सीजन तमाम ठीक होगा। और सब प्लेयर्स के लिए जो आपको चैलेंज कर रहे हैं या आपसे शौक की वो रखते हैं ख्वाहिश, तो ये है। लेकिन मुबश्शिर साहब के लिए स्पेशल एक शर्त, एक ही शर्त है उनके पास। ग्रंटेड वो लड्डू चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे अब मेरे ग्रंटेड इखलाक खान पार्टी है, सही है। मेरी ग्रंटेड इखलाक खान पार्टी है। अगर मैं किधर भी कोई पंगा लूंगा उसके मेरे देनदार है, ठीक है ना जी, उनका तो देनदार ही मैं हूँ फिलहाल। लाहौर से अभी हुआ क्या? लाहौर से भी आइंदा कोई छत शो होगी, उम्मीद है जी। लाहौर से आइंदा कोई छत शो यार अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वोटर छोटे हैं, इमरान खान की तरह वोटर छोटे हैं, थोड़े बड़े तो बोले ये तो छोटे हैं, लेकिन जो बड़े उन्होंने भी तो बुढ़े हो जाना है। बड़े बुढ़े होंगे तो वो भी तो किसी में निकालेंगे। नए आ जाएंगे। चले उम्मीद रखते हैं अगले साल चले इंशाल्लाह। 12 इस वक्त हम इसको वाइंड अप करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं तमाम दोस्तों के, तमाम साथियों के, स्पेशली उस्ताद बाबा सिकंदर साहब और इनके जितने भी शागिर्द हजरात हैं उन सबके भी शुक्रगुजार हैं बाबा साहब की तरफ से भी, कि जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर जो है आकर अपनी पूरी पावर को शो किया और उस्ताद मलिक मुबश्शिर साहब का जो चैलेंज एक्सेप्ट किया। और उम्मीद करते हैं कि अब इस पर उस्ताद मलिक मुबश्शिर साहब की तरफ से भी कोई ना कोई पॉजिटिव जेस्चर जो है वो दिया जाएगा। तो वो जो उनका पॉजिटिव जेस्चर होगा उसके बारे में भी इंशाल्लाह जल्दी आपको अपडेट करेंगे। क्या बयान है आगे से उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के बयान के ऊपर उनका, तो वो जरूर देखा जाएगा। आरजे प्रिंस जी जी आप भाई कामरा पहले हमारा जो शौक हुआ है ना कसूर में, जो मैं शौक करता हूँ, आपको पता है जेट का शौक करता हूँ पिछले 2008 से लेकर अभी तक शौक चल रहा है, ठीक है।
اب بھائی استاد مبشر کھوکر صاحب نے چیلنج کرتے ہوئے جو بات میں نے پہلے کی کہ انہوں نے 2024 تک تیاری کا ٹائم دیا. قصور میں جو میرا شوق کی دعوت وہ دے رہے ہیں اور پیچھے ریکارڈ آپ چیک کر لیں. میں جیٹ کی 7 بازیاں ناگوار بھی اڑا ہوا ہوں. میں جیٹ کے ختم ہوتے ساتھ 11 لگاتار بھی اڑا ہوا ہوں. یہ دونوں جو میرے جو شوق ہے نا یہ دونوں شوق 2024 میں استاد مبشر کھوکر صاحب کے ساتھ 11 دن لگاتار بھی اور 7 ناگوار بازیاں بھی شوق کرنا چاہوں گا. بالکل صحیح. یعنی کہ جیٹ میں 7 ناگوار پروازوں کا جو 1-to-1 مقابلہ ہے استاد ملک مبشر کھوکر صاحب کو دعوت شوق ہے استاد زیگم فیصل صاحب کی طرف سے, اور جیسے ہی وہ ختم ہوں گی اس کے فوراً ویسے پہلے ہمارا شوق ہوا ہے سخی پارٹی کے ساتھ استاد اشرف بھٹی صاحب کے ساتھ. میرے بڑے بھائی بھی ہیں استاد بھی ہیں, مطلب ہمارے وہ سینئر ہیں. ہمارا شوق ان سے ہوتا ہے اور ان سے پیار محبت بھی ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. ادھر سے ان کا بھی اور ہم برائے مطلب آگے شوق کیا بھی ہے, شوق اڑا بھی ہے اور اس کے فیصلے بھی ہوئے ہیں, ہار جیت بھی ہوئی ہے. اسی طرح شوق کا جو نا میں ان سے 7 اڑنے کے بعد 11 جیٹ کے بعد فوراً بعد 11 دن لگاتار بھی ان کے ساتھ 2024 میں اڑنا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ الطاف چیمہ صاحب جو ہیں ان کی لگ گئی ہے نا, اس ان لیے کے 1-to-1 مقابلے جو ہیں وہاں پر آلریڈی طے ہیں اپنے علاقے میں, ان کے علاقے کے رول کے مطابق. تو لہٰذا ان کے علاقے کے رول کے مطابق اگر ان کے کوئی بھی شاگرد حضرات یا وہ خود بھی ان کے ساتھ شوق کرنا چاہیں ان کے رولز کے مطابق, کیونکہ ان کی پہلے سے 1-to-1 مقابلے طے شدہ ہیں, تو اگر آپ انہی رولز پر شوق کرنا چاہیں تو الطاف بھائی آپ کی چھت حاضر. اور ایک عامر بھائی کی طرف سے ایک ڈفرنٹ اعلان ہے کہ چھت ان کی فیصل آباد میں ہے, لیکن سائیاں والا ہاں جی, لیکن ان کی طرف سے ایک آفر ہے کہ جی میں اپنے شہر کے مطابق نہیں اڑاؤں گا. اگر آپ چاہتے ہیں میرے ساتھ جیٹ کا لاہوری رول پر بھی شوق طے کریں تو میں راضی بے رضا آپ کے ساتھ شوق طے کرتا ہوں اسی سال سے. لیکن شرط ہے کہ لڈو چینج ہو. لڈو تو چینج کرنا ہی کرنا نا جی, لڈو دی گل ٹھیک ہو, ٹھیک ہے چلے لیں جی. اس کے ساتھ ہی ہم تمام دوستوں کو یہاں پر دیں اجازت. اور یہ بڑا چیتر بچیاں دا کہہ دیتے تھا بڑا بہترین یہاں پہ ایک نظام ہے. ہم سب لوگ چیمہ صاحب نے چیتر دا بچہ نہ تو چیلنج کیتا اگر استاد مبشر کھوکر صاحب دا کوئی اگر استاد مبشر کھوکر صاحب کی کوئی چھت خصوصی موجود ہوئے اگر چیتر کے بچے میرے نہ اڑانا چاہے تو میں حاضر ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جی اب نظام یہاں پہ چلنے والا ہے تھوڑی دیر میں باربیکیو کا, تو لہٰذا ہمیں بہت بھوک لگی ہے. ہاں جی, باربیکیو کھلاتے ہیں بھائی ساروں کا بھی, باربیکیو آ گیا.